اور ان کو یہ یقین دلانے میں کہ اگر وہ اپنے بچوں کو پاکستانی اسکول میں بھیجتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں بے فکر ہو سکتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ جو سلیمانیہ سیکشن ہے ہمارا جس کو انگلش سیکشن کا نام دیا گیا ہے اس میں جو ہے فیڈرل بورڈ کے کورسز نہیں وہ سارے اے لیول او لیولس پہ ہیں. اور آج کل جو اس ایڈوانس دور میں لوگ موسٹلی پریفر کرتے ہیں کہ وہ اے لیول او لیولس کریں اور کہیں باہر ایڈجسٹ ہیں. جہاں تک ہمارا ناشیہ اسکول کا تعلق ہے اس میں ہم فیڈرل بورڈ کے سارے سلیبس پڑھاتے ہیں. پاکستان میں جو سلیبس ہے اور وہ ہم یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی 8,500 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں اور جگہ بھی کم پڑ جاتی ہے. اور اتنی اچھی پروڈکشن ہے کہ میرے 10-12 اسٹوڈنٹ اس وقت ملٹری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی بہت اچھی پروڈکشن ہے. باہر کو تھوڑا سا انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہمیں امبیسی کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ جب بھی پاکستان سے کوئی اسٹوڈنٹ آئے ہم اس کو. اور اب اس بات کے تھوڑے سے حالات گڑبڑ ہوئے تھے فیملیز آئیں اینڈ پہ آئیں ہمیں ان کو اکاؤنٹیٹ کرنا جس وجہ سے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ جو ہے ہمارا اسٹوڈنٹ بہت ہے بڑے کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں. اور اگر ڈگریز دیکھیں ہماری آپ پرسپیکٹس دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. سر بالکل ہم دعا کریں گے کہ پاکستانی اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہے کی تعلیم جو ہے نہایت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کسی قوم کی ترقی کے لیے. پرنسپل صاحب محمد اقبال صاحب جو میسیج دے رہے تھے پیرنٹس کو بھی میسیج دے رہے تھے کہ ان کو اپنے بچوں کو جو ہے پاکستانی اسکول کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں ان کے پاس اور جس طریقے سے انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں اسٹوڈنٹس اوور دا ریسنٹ فیو ایئرس وہ بالکل تاجد تحسین ہے. اور پاکستانی پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے ملک کے اوپر ٹرسٹ دوبارہ اپنا بحال کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے اسکول پاکستانی اسکول میں بھیجیں. اس ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب دوسرے بھی موجود ہیں ان سے انٹرویو دیں گے ان سے تعارف لیں گے پہلے ان کا اور پھر ان سے بات کریں گے ان کے پروفیشن کے حوالے سے. میرا نام سوری سر پہلے تو ہم آپ کو جشن آزادی کی بھرپور مبارکباد دینا چاہیں گے. شکریہ بہت شکریہ اور پاکستانی کمیونٹی کو اور پاکستانی قوم کو میری طرف سے بھی جشن آزادی کی مبارکباد. اور میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام طارق محمود ہے. میں چیئرمین پاکستان بورڈ آف ڈائریکٹر اور یہ میاں محمد اقبال صاحب جو پرنسپل ہے فرمایا اس میں اضافہ یہ کروں کہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ ہمہ وقت ان کی مدد کے لیے تیار ہے. اور جہاں تک اسکول کی بہتری کے جتنے اقدامات ہیں اور ہم اس کے اپنا انپٹ ڈال رہے ہیں اور ہم دن رات جو محنت کر رہے ہیں اور اسکول کو جو میرٹ کی ہم واپس لا رہے ہیں. اچھا ایک جو کوانٹٹی آف اسٹوڈنٹس ہے جیسے کہ اقبال صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ 860 اسٹوڈنٹس ہیں تو انڈیویجولی اگر آپ پر کلاس دیکھا جائے تو آپ کتنے اسٹوڈنٹس کو انڈیویجول کلاسز میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک میکسیمم اسٹرینتھ کیا ہے کلاس کی؟ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 8,000 پلس ہے. تو باقی جہاں تک کلاسوں کا تعلق ہے تقریباً اراؤنڈ 40 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایوریج ہمارے پاس ایک کلاس ایک سیکشن میں جو ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی اس کی تعداد بہت زیادہ ہے 40 اسٹوڈنٹس اس میں انڈیویجول اٹینشن جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے؟ جی یہ منسٹری آف ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی یہ زیادہ ہے اور ہمیں احساس ہے کہ یہ زیادہ ہے. لیکن ہمارے پاس چونکہ بلڈنگز کی مسائل ہے یہاں پہ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ یہ اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. چلیے ہم آپ کو اس کے لیے بیسٹ آف لک کہیں گے اور جو کام آپ کر رہے ہیں ہم اس کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کام کو کامیاب ہوں گے اور قوم کا جو نام ہے وہ روشن ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور شخص پاکستانی کمیونٹی کے یہاں پر موجود ہیں جو تشریف لائے یہاں پر پرچم کشائی کی رسم کو دیکھنے کے لیے اور سفیر کی جو اسپیچ ہوئی ان کو بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے سنا. ان سے انٹرویو لیں گے اور جانیں گے ان کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو انہیں دیں گے آزادی کی مبارک. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو آزادی جشن آزادی مبارک ہو آپ کو. اور کیا تعارف کرانا پسند کریں گے اپنا؟ میں چودھری عبدالمجید گجر سرپرست اعلیٰ مسلم لیگ نون سعودی عربیہ اور میں آپ کو اور آپ کے قوم کو اور آپ کے ٹی وی اسٹیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آزادی کی. تو سر آپ کا کیا میسیج ہے اس مبارک دن کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم وقت کی پابندی کرے. جی بالکل تب ہم جا کے ترقی کریں گے. اور بجلی کا بحران میاں صاحب سے بڑی پر امید ہے ہم کہ وہ اس کو حل کریں گے. یہی ترقی کا ایک راز ہے. یہی دہشت گردی کی اگر بجلی آئے گی تو ملک میں روزگار ہوگا تو نہیں ہو سکتا خوشحالی آئے گی اور روزگار ملے گا. دہشت گرد
मुयसर नहीं आ सकती। सही, तो क्या एक अगर आपको एक शोबा चुनना हो कि जो एक इस शोबे में अगर पाकिस्तान तरक्की कर ले तो वो काफ़ी बेहतरी आ सकती है, तो कौन सा शोबा आप चुनेंगे? बिजली का शोबा है, इसी में तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इसके अलावा नहीं, इसी में तरक्की करेगा, इसी में ज़राअत आ जाएगी, इसी में सनत आ जाएगी, सारा कुछ। चलिए जी, आपको बहुत ज़बरदस्त मैसेज और बहुत प्रेशियस मैसेज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक खातिर प्रोमिनेंट रुकन हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनको आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहेंगे। आज़ादी मुबारक सर आप सबको भी जी बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। और इस आज़ादी के मौके पर मैं एक शेर कहूँगा जी, बिल्कुल कहिए जी, दिल खोल कर कि कहिए। जश्न का है समा, हो रही है मनादी, मेरे अहले वतन तुमको मुबारक हो आज़ादी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आपने ये शेर कहा। तो हम ये भी चाहेंगे इस शेर के साथ आप अपना तारुफ भी करवाएं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जश्न आज़ादी के हवाले से इस दिन के मुनासबत से आपको एक खूबसूरत सा पैगाम भी दें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं राना खादिम हुसैन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून अल रियाद, मैं अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि इत्तेहाद, तंजीम, ईमान और जी हम लोगों को कम अज़ कम इन चीज़ों के ऊपर, अगर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर कारबंद हो जाएं, ये काम करें, तो हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रख ना डाल सके। और दूसरी बात यह है कि हमें मिलजुल के एक दूसरे की मुश्किल को समझना चाहिए। और आज मुल्क जो बहुत बहरानों का शिकार है, समझे, हमें अपनी क़यादत का भरपूर साथ देना चाहिए। हमारे मुल्क में सिर्फ हमें इस वक्त जदोजहद करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया अपने मुल्क में भेजें, क्योंकि हम अपने मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकें। आज हमें सिर्फ बिजली की ज़रूरत है सख्त। अगर हमारे मुल्क में सिर्फ बिजली का मसला हल हो जाए तो हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी, हमारे मजदूर भी चलेंगे, हमारी ज़राअत भी चलेगी, हमारे पास तमाम शोबे जो हैं। और इसलिए सॉरी, आपकी बात को कट ऑफ करूँगा। आप चूँकि एक रिकगनाइज्ड और जानी पहचानी मारूफ शख्सियत हैं रियाद की, आप बिल्कुल पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है उनसे भी इंटरेक्ट करते होंगे, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रियाद में है, सऊदी अरब में, उनसे भी इंटरेक्ट करते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रियाद में आती है वो कदरे वो ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करते हैं, और उनका जो एक परसेप्शन है सऊदी कम्युनिटी में वो एक अच्छे अंदाज में पेश होता है? इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान इसका जो इमेज है वो इतना खातिर ख्वाह जो है वो नहीं जाता वर्ल्ड कम्युनिटी को। तो उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तानी जब दूसरे ममालिक में जाके रहते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही महज़ब अंदाज से और एक एग्जाम्पलरी सिचुएशन में जाके रहते हैं, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके ऊपर खप चुके हैं। क्या वजह है इस जो है कॉन्ट्रडिक्शन की? देखिए, हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है। हम ऐसी कौम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि हमने एक छोटा सा मुल्क होने के नाते एटमी धमाके किए, समझे कि नहीं। सबसे हमारे लिए फ़ख्र की ये बात है, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें अच्छी क़यादत मैसर आ जाती तो पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत आगे जा सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये है कि हमको अपने मुल्क में वाकई आपने जो कहा है कि हम वायलेशंस करते हैं, हम कानून को नहीं देखते, हम ट्रैफिक के निज़ाम को नहीं देखते, कुछ भी करते हैं, यहाँ पे आके महज़ब बन जाते हैं। तो कम अज़ कम जो लोग यहाँ से जाते हैं उनमें बहुत सारी तब्दीली आ चुकी होती है जब अपने वतन जाते हैं। तो हमें चाहिए कि कम अज़ कम दूसरे लोगों को भी बताएं कि आप तरगीब दें कि आपको ऐसा करना चाहिए। बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया। आखिर में जिस तरह जोशो खरोश और बुलबुले से आपने ये बातें की, एक मैं मैसेज आपको कहूँगा कि आप पाकिस्तान के दुश्मनों के नाम एक नहायत स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज दें। पाकिस्तान के दुश्मनों के नाम जी ये मैसेज है, तो मैं कोई एटमी धमाकों के मतलब एक दो शेर कह सकता हूँ? जी बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ जी कि ये पंजाबी में आपको एक दो शेर आपको सुनाऊँगा। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। कि मैं सोने रब दी सिफत बयान करना, किते कहार ते किते रहमान बनिया, जावा सोने मुहम्मद दी शान तो जिदे वास्ते सी दो जहान बने। ते दुनिया विच जहालत ते भटकदी सी, ओदी रहबरी ली सी कुरान बनिया, होया मुजदा सी रूनमा ऐसा कायदे आज़म हथों पाकिस्तान बनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, तालियां हो जी इस शेर को। अज दुश्मन दे कोलों दहलदे ने मुस्लिम उम्मा दा ये तर्जमान बनिया, अल्लाह लिया तुमा फासला ना मैं एटमी नहीं पाकिस्तान बनिया। क्या बात है जी, क्या बात है, तालियां हो जी, बहुत शुक्रिया। ते 14 अगस्त दा दिन बहुत वड्डा, 14 अगस्त दा दिन बहुत वड्डा,
ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਯੌਮ ਤਕਬੀਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜੁਰਅਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲਾ। क्या बात है, बहुत ही वलवला खेज अंदाज में और जोशो खरोश से ये तकरीर की इन्होंने, और पाकिस्तान के दुश्मनों के नाम बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा और क्लियर सा मैसेज भी दिया एक पंजाबी को, और बहुत ही जो पंजाबी ज़ुबान है नहायत ही मिठास वाली ज़ुबान है, और जब इसको अग्रेसिव तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है तो दुश्मनों पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी जो है आप देखने को मिलता है, जैसे इन्होंने बात की, और बहुत ही इंथुजियास्टिक अंदाज में लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान के पैट्रियट हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, नहायत ही इज़्ज़त माब के शख्स हैं। इनसे सबसे पहले तो आज़ादी मुबारक इनको देंगे। आज़ादी मुबारक सर आपको। मेरी तरफ से भी आपको भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को, और जो स्पेशली सऊदी अरब में कम्युनिटी है इन सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। सब आप सर अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे आप? मेरा नाम हयात मोहम्मद अब्बासी है, और हम इस्लामाबाद के साथ बड़ी जो पहाड़ी इलाके है उससे बिलोंग करते हैं। यहाँ रियाद में हमारा बिज़नेस है सऊदी अरब। माशाल्लाह। तो आप इस दिन की मुनासबत से 14 अगस्त की मुनासबत से पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी तरफ से सबसे पहला पैगाम ये है कि बुनियादी चीज़ जो है किसी भी कौम के लिए वह नज़रिया होता है। सही। तो हम अपने नज़रिए के साथ कमिटेड रहें, और हमारा मुल्क जो है बुनियादी तौर पे एक नज़रिए की बुनियाद पे बना था। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कौम है पाकिस्तान में है, वो तो हमें बुनियादी तौर पे हमें पाकिस्तान के लिए हर वक्त पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल उनके लिए सारे मामला जो हैं उनके लिए कौम को सरफर होना है, लेकिन इत्तेहाद से, यगानगत से और इत्तफाक से, और अहम तरीन बात जो है सब्र से। सही सब्र से। तो क्या आपको लगता है कि जो नज़रिया जिसके तहत पाकिस्तान बनाया गया था, चाहे वो नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह का था, और इस्लाम के नज़रिए पर पाकिस्तान को बनाया गया था, क्या लगता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारा मुल्क है, उस नज़रिए की अक्कासी करता है? बुनियादी तौर पे मुझे तो नहीं लगता इसमें, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इस बात पर पक्की रही और हमारा इत्तेहाद और इत्तफाक रहा। हम कोशिश मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में हमारा नज़रिया मजबूत होगा, पाकिस्तान उसी बुनियाद पे जो है ना ग्रो करेगा, तरक्की करेगा। और मैं आपको ये अपने यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद जो है वही ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उसी नज़रिए की बुनियाद पर तरक्की चलो, बहुत कर सकते खूबसूरत सा मैसेज दिया और बहुत अप्रोप्रिएट सा मैसेज भी दिया है इस दिन के हवाले से। बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके। तो हमारे साथ मौजूद हैं अगले हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ पर रियाद काउंसलेट में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो उन्हें आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहेंगे। सर, आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। सर, आप अपना तारुफ करवाना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे अपना? मेरा नाम अली आसिफ रशीद है, और यहाँ हम एक तंजीम चलाते हैं वेलफेयर स्टूडेंट्स के लिए, ब्रावो पाकिस्तान फोरम, उसका प्रेसिडेंट हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर मैं दुनिया न्यूज़ को भी कवरेज करता हूँ। उसके साथ मैं अपना यहाँ मैगज़ीन यहाँ निकालता हूँ, ब्रावो मैगज़ीन के नाम से। सही। तो सर, आप 14 अगस्त की मुनासबत के हवाले से जो आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, कुछ खसूसी पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को? हाँ बिल्कुल यार, कहते हैं यूनाइटेड और कहते हैं मुत्तहद होकर रहें, और प्लीज़ ये जो हमारे अंदर जो फ़िरका वाराना और जो लिसानियत जो पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करें, क्योंकि अब ये वक्त नहीं रहा है कि हम जो है ना एक दूसरे के गिरेबान के ऊपर कहते हैं हाथ डालें। बेस्ट ये है कि हम जो है ना दूसरे गिरेबान को साफ़ करें, सुथरा करें, और उसको सपोर्ट करें पाकिस्तान को, और हर बंदे को हम सपोर्ट करें, चाहे किसी भी उसको। और यहाँ सफ़ीर पाकिस्तान ने भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है हम पाकिस्तानियों के लिए। तो बेस्ट ये है कि आप लोग जो है ना कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। सॉरी, आपकी बात को कट करूँ। मॉरल वैल्यूज़ की तो एक बात है, हम पहले भी एक पाकिस्तानी जो हम मिले थे उनसे बात कर रहे थे कि इन मकासद के तहत पाकिस्तान बनाया गया था और हासिल किया गया था। क्या आपको लगता है कि वो मकासद हासिल कर लिए गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान का जो मंशूर था वो ये था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मंशूर के ऊपर कायम किया गया था, और जो बेसिक मकसद था पाकिस्तान का वो ये था कि उसको इस्लाम के जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशन उसमें चलाया जाए। किस हद तक आपको लगता है कि पाकिस्तान उस राह पर कामयाब हुआ? यार पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ही हमारे से वजूद में आया था, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अजान होती है, नमाज़ होती है, रोज़े रखे जाते हैं, हज होती है, ज़कात होती है, सभी होते हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने जो अचीवमेंट करनी थी वो कर ली, लेकिन हम अचीवमेंट जो नहीं कर सके वो सिर्फ इस बेस पर नहीं कर सके जो हमारे पास ये जो ना इत्तेहाद की कमी हो गई है, और हमारे ये इत्तेहाद की कमी कहाँ पैदा हुई है इसको हमें देखना पड़ेगा, और हमें मिल बैठ कर ही बात करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तंजीम में ताल्लुक़ हो या कुछ भी हो। लेकिन जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि हमने अचीवमेंट किया है या नहीं किया, पाकिस्तान जिस नाम पे बना था अल्हम्दुलिल्लाह
پاکستان میں اذانیں ہوتی ہیں پاکستان میں. بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست آپ نے میسج دیا. انٹرویو کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. انٹرویو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے کوریا سے آئے ہوئے مسٹر جی، جو کہ انرجی کمپنی کے ایک مالک ہیں اور پاکستان کے ساتھ کولیبریشن میں پاکستان کے جو انرجی کرائسس ہے، جو الیکٹریسٹی کا بحران ہے، اس کو حل کرنے میں جو ہے میجر اسٹیپس لینا چاہتے ہیں. تو ان سے بات کریں گے. فرسٹ آف آل مسٹر جی، ویلکم آن بورڈ. وی آر ڈیلائٹڈ ٹو ہیو یو آن دس شو. سو آن دس ڈے آف انڈیپینڈنس، what would your message be to the people of Pakistan? First of all, I'd like to congratulate on your 67th independence anniversary. Congratulations. Right. So that's nice of you, Mr. G. What are your general feelings towards people of Pakistan, and what is your general perception about us? Well, I've been working for here since 2009, and most of my Pakistani friends are very diligent, and they are very sincere. So, and then Pakistani friends is much helpful and useful for my business in the kingdom. Right. So could you please tell the audience a bit more about your business and what exactly you intend to do in Pakistan? Right. You see, so far, if I speak frankly, Korean diplomatic relationship in West Asian country region, Korean government inclined to India. However, since the new Korean government is inaugurated February this year, Right. Especially the new Korean ambassador, Mr. Song, inaugurated his work in Islamabad. He reported the importance of the Pakistan's market. Especially there is a huge business potentiality and opportunity between two countries. Right. So what do you exactly intend to do? Would you probably be visiting the country and setting up power plants there in collaboration with the Pakistani government? Sure. So, especially the Korean top 10 construction companies such like Samsung, Hyundai, POSCO, GSM, etc., is willing to be involved in the social